کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تحت گرائے جائیں گے، جب تاج اتارے جائیں گے۔ چلتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، کٹتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، وہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، ٹنکوں سے نکالے جائیں گے۔ انتہائی قابل احترام قائدین کرام، چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جناب سردار صغیر ایڈوکیٹ صاحب، میری غلام دھرتی کے غلام باتیوں، محب وطن ساتھیوں، جس طرح مجھ سے پیش رو مقررین نے کہا کہ آج کے اس علامتی احتجاجی دھرنے کا مقصد بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو گزشتہ 4 ماہ سے ایک پرامن سیاسی تحریک جاری ہے، کشمیر چھوڑ دو تحریک، اس کا دائرہ کار پوری ریاست تک بڑھانے کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ان دھرنوں کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل 22 تاریخ کو کھوئی-رٹا کوٹلی میں 1374 سیز فائر لائن پر ایک تاریخ صاحب دھرنا دیا گیا، اور آج اسی دھرنے کا یہ جو دوسرا دھرنا ہے اسی سلسلے کا وہ یہاں دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ان دھرنوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کشمیری قوم جو آج سے تقریباً 63 سال قبل جب 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان کے اندر سے قبائلیوں نے آزاد کشمیر پر یلغار کی، اور اس کے نتیجے میں مہاراجہ کشمیر نے ہندوستان کی فوج سے مدد طلب کی، اور 27 اکتوبر کو ہندوستان کی فوج کشمیر پر اتری اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو ان دھرنوں کا مقصد یہ ہے کہ 22 سے 27 اکتوبر تک ہم جو یہ ہفتہ سیاہ اور ہفتہ یکجہتی کشمیر بنا رہے ہیں کہ کشمیر کو تقسیم کرنے کا، کشمیر پر کشمیر کی وحدت کو تقسیم کرنے کا اور ریاست پر قبضہ کرنے کا یہ جو منحوس ہفتہ ہے، اس کو پرامن طور پر سیاسی جدوجہد کے ذریعے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کل دنیا یہ کہتی تھی کہ کشمیریوں نے بندوق اٹھائی، کشمیریوں نے جو ہے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے ہم کشمیریوں کی حمایت کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن آج 4 مہینے ہو گئے، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک پرامن تحریک اٹھی، کشمیریوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے، ہاتھوں میں انہوں نے جو ہے وہ کنکر لیے، زبان پہ انہوں نے نعرے رکھے، انہوں نے ڈنڈے نہیں اٹھائے، انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، لیکن انہوں نے دنیا کی جو 7ویں بڑی جو سپر طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہندوستان، اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس طرف جو ہمارا وکیل، جو ہمارا خود فیصلہ وکیل، ہمارا نام نہاد دوست، جو ہمیشہ ہماری پیٹھ پر چھرا لے کر موجود رہا کہنے کو، تو یہاں کے اسلام آباد کے حکمران، اسلام آباد کے سیاسی زعما اور یہاں کی سیاسی جماعتیں یہ کہتی رہی ہمیشہ کہ ہم آپ کے پشتبان ہیں، ہم آپ کی پیٹھ پر کھڑے ہیں، اور ہندو بنیے کو یہ تانا دیتی رہی کہ ہندو بنیے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہاتھ میں چھری رکھتا ہے، منہ میں رام رام کرتا ہے اور بغل میں چھری رکھتا ہے۔ لیکن عملی طور پر ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کا بنیا ہے، اس نے اتنا بڑا خنجر رکھا ہر دفعہ کہ ہماری پیٹھ پر جھونکا۔ 47 سے یہ شروع ہوا سلسلہ جب مہاراجہ کشمیر نے ان کے ساتھ سینڈ اگریمنٹ کیا، جب یہاں کے مسلمانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی یا مسلم کانفرنس کی یہ ڈیمانڈ تھی جو اس وقت نمائندہ جماعت اپنے آپ کو کرواتی تھی کہ مہاراجہ کے ساتھ اگریمنٹ کیا جائے، مہاراجہ نے اگریمنٹ کیا پاکستان کے ساتھ، ان کا مطالبہ تسلیم کیا، انہوں نے اگریمنٹ کو وائلیٹ کیا اور قبائلی جو ہے وہ داخل کروائے اور کشمیر کو تقسیم کروایا۔ اس کے بعد جب بھی موقع آیا، وہ شملہ میں ہوا، وہ تاشکند میں ہوا، وہ آگرہ میں ہوا، انہوں نے ہمیشہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھوما۔ اور آج جب کشمیری 4 ماہ سے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے تو انہوں نے یہاں سے لشکر چلوانے شروع کیے ہیں، انہوں نے یہاں سے آزادی کے کاروان چلانے شروع کیے ہیں۔ وہی دہشت گرد جن کو کل یہ خود شکار کر رہے تھے، کل خود یہ پہلے درجے کے اول نمبر کے احتجاجی بن کر جو ہے وہ دنیا کو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی کمین گاؤں میں گھسے ہوئے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، آج ان کو پروٹوکول کے ذریعے حافظ عبد الرحمان مکی، وہ لشکر طیبہ کے دہشت گرد، وہ جیش محمد کے دہشت گرد اور اس طرح کے دوسرے بے شمار، ان کو پروٹوکول کے ذریعے میرپور سے داخل کیا گیا اور یہاں سے پوری ریاست سے گزار کر مظفر آباد سے اسلام آباد لے جایا گیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے ہمدردی کا، یہ کون سا طریقہ ہے حمایت کا کہ کل جب کشمیریوں نے بندوق اٹھائی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے آزادی کی تحریک شروع کی اور کشمیر کے گھر گھر سے آزادی کی فضا ہوگی، تو تم نے بندوق JK-11 سے چھینی،
जबरदस्ती छीनी, रोकी और फिर जो है वो ये दहशत गर्द हाल की और तहरीक को तबाह किया। आज जब पुरअमन तहरीक चल रही है तो आज फिर तुम वही करना चाह रहे हो। लेकिन हम ये वाज़ह करना चाहते हैं इस मनहूस खूनी लकीर पर आकर, जिस तरह मुझसे पेशो मुकर्रीन ने कहा कि आज 10 कदम आगे बढ़े, कल 10 कदम आगे बढ़े, आइंदा भी 10 कदम आगे बढ़ेंगे। ये धरना इसीलिए है कि इस मनहूस खूनी लकीर को खत्म किया जाए। ये धरना इसीलिए है कि ये जो मनहूस फौजी खड़े हैं इधर खाकी वर्दी में, ये भी मनहूस हैं, जो उस तरफ खड़े हैं वो भी मनहूस हैं, ये भी काबिज हैं, वो भी काबिज हैं, ये भी जो है वो हमारा हक छीनते हैं, वो भी हमारा हक छीनते हैं। मुसलमान होने की हैसियत से सऊदी अरब वाले भी हमारे भाई हैं, मलेशिया वाले भी हमारे भाई हैं, ईरान वाले भी हमारे भाई हैं। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि ईरान की फौजें, सऊदी अरब की फौजें आके हमारे मुल्क पर कब्जा कर लें, और ना ही कोई और मुल्क मानता है। आज सऊदी अरब ईरान के खिलाफ जो है वो जंग की तैयारियां कर रहा है। दुबई ने जो है वो अमेरिका से मायदा किया ईरान के खिलाफ कि हमारे उनके वो हैं। तो यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर बैठकर हमें ये भाषण सुनाने की, हमें ये लॉलीपॉप देने की कोशिश ना की जाए कि इस्लामाबाद हमारा भाई है, इस्लामाबाद वाले हमारे पुष्टबान हैं, वो जो है वो मुसलमान हैं, हमारा काबा किबला उस तरफ है, हमारी जो है वो दरियाओं का रुख उस तरफ है, दरियाओं का रुख, तो ये कुदरती तौर पर दरियाओं का रुख उस तरफ है। लेकिन अभी जब दरिया बिखरे तो फिर उनको पता चला कि जो है वो दरियाओं का रुख बाज़ दफा खतरनाक भी होता है। इसी तरह अगर ये अवाम जो आज पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं है, जो आज पाकिस्तान के मेहनत कशों के खिलाफ नहीं है, जो आज पाकिस्तान के मजदूरों के खिलाफ नहीं है, खुदारा हमें मजबूर मत करो कि हम पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ भी नारे लगाने पर मजबूर हों। आज आपने देखा कल ही श्रीनगर के अंदर एक सेमिनार हुआ, टॉप के इंटेलेक्चुअल्स इंडिया के आए हुए थे वहां पर। अरुंधति राय इंडिया की सबसे मशहूर इंटेलेक्चुअल, इंडिया की पहचान है इंटरनेशनली, उसने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है, कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं रहा है। कश्मीर एक आजाद रियासत थी जब मौजूदा हिंदुस्तान तश्कील हुआ। शर्म आनी चाहिए इन बेगारतों को। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी दानिशवर ऐसा नहीं है, एक भी बागैरत और बाज़मीर, रोशन ख्याल, तरक्की पसंद या राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट या जो है लिबरल ऐसा नहीं है जो ये कहे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर एक अलग रियासत है। ये सारे एक ही राग लाते हैं, सबकी जो है वो एक ही स्टैब्लिशमेंट की टून है, चाहे वो फौजी स्टैब्लिशमेंट हो, वो मुशर्रफ को आपने देखा, चाहे वो सियासी स्टैब्लिशमेंट हो, आप देख लें ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको भी इनका एक ही नारा है कि कश्मीरियों को लूटो, कश्मीर को तकसीम करके रखो। और आज जो पीपी की गवर्नमेंट आई उसने गिलगित को अपने कब्जे में लिया। आजाद कश्मीर के अंदर अभी रिसेंटली ये जो हमारे बेगैरत हुक्मरान है आजाद कश्मीर के, ये जो टके टके पर बिकने वाले गुज़श्ता 4 साल के अंदर 4 दफा कुरान उठाकर सीख चुके हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि अभी 4-6 जो इनके निगरान थे कश्मीर कौंसिल के अंदर, उनके फंड इन्होंने बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 80% जो आजाद कश्मीर का बजट है ये कश्मीर कौंसिल मंजूर करेगी, और जो है वो आजाद कश्मीर असेंबली वो बिल्कुल उसको बेकार करके रख दिया गया है। और शर्म आनी चाहिए सरदार अतीक को, ये साथ बैठकर गिलानी के खिताब करता है। इसका क्या ताल्लुक है गिलानी से? क्या ये उसकी पार्टी का आदमी है कि जब उस पर क्राइसिस आता है? ये 4 दिन पहले तो जरदारी को कैसी रिस्क करार दे रहा था, लेकिन अभी 1 हफ्ता कबल जब उनकी गवर्नमेंट जो खतरे में गई तो ये कंधे से कंधा मिलाकर बैठा, और मैं भी शादी कंधे से कंधा मिलाकर बैठा। ऐसे बेगैरत, ऐसे दलाल, ऐसे तौतों की वजह से आजादी की मंजिल भी दूर हो रही है। हम समझते हैं आज के इस ऐतिहासिक दर्जे की वसादत से हम ये ऐलान करते हैं ये जो कश्मीर के अंदर हुक्मरान बैठे हुए हैं इनको भी कि वो होश के नाल में वो सीधा रास्ता, आजादी का रास्ता इख्तियार करें और आजादी के रास्ते में रोड़े न अटकाएं। ये वक्त है, इस वक्त जो है वो लोग पार उठे हुए हैं, 4 महीने से उठे हुए हैं। आजाद कश्मीर के अंदर भी लोग उठना चाहते हैं, लोग आजादी लेना चाहते हैं। जब लोग उठते हैं तो उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर कि जब लोग उठे तो मुशर्रफ जैसा जो डिक्टेटर था, बदतरीन डिक्टेटर जो 9 साल से हुकूमत कर रहा था, उसको इंग्लैंड से पीछे जगह नहीं मिली। आज लोग उठे हुए हैं। आज भी ये अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहते हैं तो ये आजादी के रास्ते की तहरीक में रुकावटें न बने। लेकिन आज सरदार अतीक का बेटा इधर कोटली के अंदर घुसा हुआ इलाके पाकिस्तान रैलियां निकाल रहा है। लानत भेजता हूं मैं इस तरह की रैलियों पे। बात है कि जब कौम आजादी के लिए उठ के खड़ी हो रही है तो वो गुलामी के हक में चंद बरादरी के ताउतों को लेकर, बरादरी के खरतेजों को लेकर, ज़कात खोरों को लेकर, वजीफा खोरों को लेकर, अवाम का पैसा खाने वालों को लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकलते हैं और आकर जो है वो अवाम को ये भाषण सुनाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की तरह है। जिस तरह अरुंधति राय ने कहा पाकिस्तान 47 में बना है,
ये फैक्चुअल मिस्टेक, हिस्टोरिकल मिस्टेक जो है वो करने की कोशिश न की जाए। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो रियासत जम्मू कश्मीर उससे कई हजार साल पहले इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद थी, उस वक्त भी मौजूद थी, उस वक्त भी एक आजाद मुल्क था। कश्मीर न पाकिस्तान का हिस्सा कभी रहा, न पाकिस्तान का हिस्सा कभी है, न हिंदुस्तान का हिस्सा कभी रहा और न हिंदुस्तान का हिस्सा कभी होगा। हम आज के इस धरने की वसादत से इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरियों की जो एस्पिरेशन है, कश्मीरियों की जो डिमांड्स हैं, उनको समझें, उनको समझें, उनको सुने और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो साम्राज्यवाद हुकूमतें हैं उन पर ये दबाव डालें, उन पर दबाव डालें कि वो अपने फौजी यहाँ से निकालें, वो अपनी एजेंसियां यहाँ से निकालें, वो अपने सिविलियन जो एहकार यहाँ पर उन्होंने दाखिल किए हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वो पाबंद है, उनको निकालने के वो निकालें और कश्मीरियों को आस पार पूरी रियासत के अंदर जाने की आज़ादी दी जाए और फिर कश्मीरियों को यह हक दिया जाए जिसका वादा किया गया है, कश्मीरियों को यह हक दिया जाए कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। मैं इसके साथ साथ आज के इस धरना चुके ये कंट्रोल लाइन इस पे सीज फायर लाइन पे क्रॉसिंग पॉइंट पे है, मैं जो इस क्रॉसिंग पॉइंट के अंदर कश्मीरी ताजियों के साथ यहाँ जो कारोबार करने वाले ट्रेडर्स हैं उनके साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं, जो बदमाशियां की जा रही हैं और इस तजारत को अमलन दिल्ली और लाहौर की तजारत बनाकर जो रखा गया है, मैं उसकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस तजारत को आर और पार की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और यहाँ के जो ताजरों की तंजीमें हैं उसकी जो है वो निगरानी में लिया जाए। इसके साथ साथ कंट्रोल लाइन पर जो एजेंसियों की बढ़ती हुई मुदाखलत है और जो लोगों को ये किडनैप करते हैं ISI और दूसरी एजेंसियां MI और जो है वो लोगों पर बिना वजह उनको उठाकर गायब करते हैं, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इनको वार्न करते हैं कि याद रखें कि ये कराची नहीं है, ये लाहौर और बलूचिस्तान नहीं है कि तुम जहां से चाहोगे भाग जाओगे। कश्मीर से भागने के रास्ते बहुत कम है, बहुत कम है। 2-3 रोडें जाती हैं यहाँ से पाकिस्तान। हमारे लोगों को मारोगे तो जिंदा तुम भी नहीं जाओगे, तुम्हारी भी लाशें जाएंगी और जब बोरी बंद लाशें जाती हैं, जब पैक होकर लाशें जाती हैं, अमरीकियों से पूछो, जब उनके अड्डों पे जाकर लाशें उतरती हैं अमरीकी फौजियों की जो अफगानिस्तान में जुल्म कर रहे हैं तो क्या असर होता है, फिर कैसे पॉलिसियां चेंज करनी पड़ती हैं। हमें मजबूर मत करो कि कल तुम्हारी भी यहाँ से लाशें जाएं, इसलिए जो वादा किया है उसे पूरा करो, मुल्क को छोड़ो, कश्मीरियों को फैसला करने का आपको बड़ी मेहरबानी।